लेकिन अम्मा, रिश्ते तो हमारे दिल से बंधे हुए होते हैं, उन्हें कोई कैसे भुला सकता है? You're back. Didn't you get my messages? Where were you? No. What messages? Hello, Wally. I am back. Come and pick me up. I am at the airport waiting. Bye. Ali, where are you? I've been waiting for you for half an hour. Anyway, I'll catch a cab and come home. This. You've obviously been out all evening. So? You go off to Pakistan, leave me here all alone, and expect me to stay home all day? Huh. No. But it's 2 o'clock in the night. 2 बज रहे हैं रात के. क्या कर रही थी तुम इतनी रात बाहर? It's the weekend. I was out with my friends. I'm not going to tolerate that accusing tone. I am the husband. शौहर हूँ मैं तुम्हारा. मैं दूसरों से मिलने से तुम्हें रोक सकता हूँ. You may be my husband, but I don't have to listen to a word you say, okay? मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी. I'm not going to change my lifestyle just because you're intolerant. I am not intolerant. Marriage is a commitment between two people. It involves compromising. Understand? Yeah. And that kind of attitude isn't going to make me compromise. इस तरह से होता है. आंटी, अफशा कहाँ है? बेटे वो अभी अभी बाहर से आई है. जरा फ्रेशन अप होके अभी नीचे आती है. हाँ जैजी, यकीनन तुम जापान से कामयाब होके लौटे होगे. बस आंटी, ये आप लोगों की दुआएं हैं, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा काम मिला है. हाँ भाई जैजी, तुम्हारे डैडी ने मुझे कल रात ही बता चुके थे कि तुम जापान से बहुत कामयाब लौटे हो. जी बस अंकल, आजकल खुदा बड़ा मेहरबान है. वाकई शायद आपकी बेटी बहुत लकी. शायद नहीं, यकीनन. सच पूछिए तो हमारे हालात भी अफशा की पैदाइश के बाद ही बदले थे. जी ऐसा ही लग रहा है. वरना अफशा से पहले तो मैं दुनिया का इंतहाई नाकाम तरीन आदमी था, और डैडी की नजर में तो इंतहाई. अरे नालायक तो तुम अब भी हुए ना. हाँ भाई, बात तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि अब मेरी खुशकिस्मती जेजी से वाबस्ता हो रही है, तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ जेजी, आपने तो अभी तक अफशा की शॉपिंग भी नहीं की. हाँ, आई थिंक वो मैं अफशा के साथ ही शॉपिंग पर जाऊंगा. वैसे मैंने उसकी डायमंड रिंग तो ले ली थी, मगर आई एम श्योर उसकी पसंद मेरी पसंद से कहीं ज्यादा अच्छी हो. मैं जरा ऊपर से अफशा को बुला लाऊं. शायद वो जानती नहीं कि तुम लोग आए. These are for you. Thank you. अच्छा, तो नारा साहब सुनाइए, आपने टेंडर के कागजात भिजवा दिए थे मेरा ख्याल. यस सर, और मुझे यकीन है कि हमारा बिजनेस बेहद कामयाब होगा. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला. साला बहुत भूख लग रही है.
हाँ भूख तो मुझे भी लग रही है। चलो ओएसिस रेस्टोरेंट चलते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन डायरेक्शन मालूम है ओएसिस की? हाँ पता, एक दफा मैं सोहेल के साथ गई तो थी। तो सोहेल को फोन कर लेते? नहीं, उसे फोन करना अभी ठीक नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। तो फिर डायरेक्शन के लिए फोन कर रहे हैं हम। Sohail left his phone here. Hello? Oh my God, ये तो एली ने फोन उठा लिया। अब क्या हुआ? सिर्फ डायरेक्शंस के लिए तो फोन कर रहे हैं। Hello? Who is this? This is Saima Shah. Sohail's not here. Can I take a message? Oh my God, Sohail तो घर में नहीं है। Actually I called because I needed directions to the Oasis restaurant. You could call the restaurant directly. Yeah, you're right. Why didn't I think of that? Okay, bye. Thanks. Bye. What? बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों, क्या हुआ? एली बड़ा गुस्से में थी। Don't worry, come on, let's go. She expects me to think she wanted directions? She could have come up with a better excuse than that. And Sohail, he dares to tell me not to go out with my friends and then he's seen Saima behind my back? Oh. Sally, I forgot my cell phone. Yes. And you just got a very important phone call. Who called? Saima. And apparently you're supposed to meet her at some restaurant. What nonsense. She said that? That's what she meant. Oh, Ellie, have you lost your mind? I haven't met Saima since before we got married. Oh, please, Sohail. I'm not stupid and don't lie to me. I'm not lying. Oh, really? Well, then, who was that girl you were laughing with when we were shopping at the mall the other day? That was a coincidence. Restaurants में lunch भी coincidence है? क्या बकवास है? Oh, this is not bakwas. तुझ में से cheating कर रहे हो. I have proof. Okay, look at the caller ID. It says Saima Shah. But Ellie, No, you cheater. You Zalil, you got me. mind your language. No, you don't love me. You just wanted a green card. Are you going? No. Get out. Get out! Get out! Get out! Okay, okay. पहला प्यार है। तो तुम हो अली? जी। कहाँ जॉब करते हो? जी अभी नहीं, लेकिन अगर मैं इस सेमेस्टर ग्रेजुएट करता तो अभी ऑन जॉब होता। अरे अफशा तो कह रही थी कि तुम इस सेमेस्टर ग्रेजुएट कर रहे हो। वो एक्चुअली मेरा एक कोर्स रह गया था। ये कोर्स किस वजह से रह गया था? जी एक्चुअली वो डेट सेविंग की वजह से 1 घंटा लेट पहुंचा था एग्जाम पर। बरखुरदार, ऐसी गैर जिम्मेदारी इस मुल्क में नहीं चलती। वैसे बेटा तुमने बताया था कि कहीं जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। जी। इंटरव्यूज दिए हुए हैं। एक कंपनी ने ऑफर तो की थी लेकिन क्या? एग्जाम में रह जाने की वजह से डिग्री नहीं मिल सकी, और जॉब शुरू करने से पहले कंपनी चाहती है कि एजुकेशन के तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। जाहिर है, वो तो रिक्वायरमेंट होती है। हाँ मामा, अली गैर जिम्मेदार नहीं है। फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि इन हालात में भी तुम्हें कोई अपनी बेटी दे सकता है? बरखुरदार, पहले तुम अपना मुस्तकबिल संवारने की कोशिश करो, उसके बाद दूसरी चीजों के बारे में सोचना। बेटा तुम्हारे वाले साहब क्या करते हैं? जी वो बैंक में मैनेजर है। तुमने उनसे इसके बारे में बात की है? जी हाँ। क्या कहा उन्होंने?
उन्होंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे बहन भाई और कितने हैं? जी मैं एक ही हूँ। ओह, तो तुम इकलौते हो? शादी के बाद मुस्तकिल तुम यहीं रह जाओगे ना? जी नहीं, मैंने मुस्तकिल यहाँ रहने का कोई फैसला नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम शादी के बाद पाकिस्तान मुस्तकिल मूव भी हो सकते हो? जी शायद। एक्सक्यूज मी, मुझे पार्टी पे जाना है। शाहनवाज, बाकी बातें आप कर लीजिए। एक्सक्यूज मी बेटा, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। ऑल द बेस्ट। डैड, ये वो मटेरियल्स की लिस्ट है जो हमारे नए प्रोजेक्ट में यूज होगी। अरे भाई, ये इलेक्ट्रिक वाटर बक्स क्यों काट दिया आपने लिस्ट में से? इंस्पेक्शन में सिटी गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये तो पूरे $40,000 का नुकसान हो गया। रियली डैड? रखा कहाँ है? स्टोर नंबर 5 में। स्टोर नंबर 5। तुम ऐसा करो, घर जाते हुए स्टोर नंबर 5 का पानी का पाइप किसी रेंट से खोल दो। क्यों? अरे तुम नहीं समझोगे, इस पर हम इंश्योरेंस वालों से क्लेम कर सकेंगे। यू आर ए जीनियस डैड। मगर सुनो, ये काम तैयारी से करने का। डोंट यू वरी। Yes, hi. I need to file a report. No, my husband just hit me. Yeah. No, he's not here. Well, okay, so you're gonna send someone? Okay. Yeah, it's 423 Rose. Right. Okay, thank you. And I think he might have gone to one of his friend's house. Do you know where it is? No, I've only been there once, and it was a really long time ago. I have these pictures. Don't worry, we'll find them. You take care of yourself. Okay. You are a genius, Dad. मगर सुनो, ये काम तैयारी से करने का। Don't you worry. Yes, hi. I need to file a report. No, my husband just hit me. Yeah. No, he's not here. Well, okay, so you're gonna send someone? Okay. Yeah, it's 423 Rose. Right. Okay, thank you. And I think he might have gone to one of his friend's house. Do you know where it is? No, I've only been there once, and it was a really long time ago. I have these pictures. Don't worry, we'll find them. You take care of yourself. Okay.
You're under arrest for domestic violence. Hello? सुहेल, कहाँ हो यार? क्या? जेल में? तुम जेल में कैसे हो? ये सब कैसे हुआ? अली को तो दिमाग खराब है, पागल है ये औरत। अच्छा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं और अली फौरन जाके के लॉयर से बात करते हैं, बस तुम फिक्र नहीं करो। यार सुहेल, पैसे की फिक्र मत करना यार, हम हैं ना, बस तुम ऐसा करो, मुझे 2 घंटे बाद कॉल करो, ऑलराइट? चलो, ओके, बाय। जैजी के साथ इसी महीने ना कर ले। सुरैया, क्या हो गया तुम्हें? ये फैसला करने में तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो, जबकि अफशां भी पूरी तरह से राजी नहीं है? मेरा ख्याल है कि इस काम में जल्दबाजी किसी भी तरह से मुनासिब नहीं। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ शाहनवाज, जैजी अफशां के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और वो एस्टैब्लिश्ड भी है। उसकी फैमिली हमारे सोशल सर्कल से मैच करती है और सबसे बड़ी बात ये कि वो लोग इसी शहर में रहते हैं। हमारी बेटी शादी के बाद हमारे करीब रहेगी। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी अफशां की खुशी भी। अफशां की खुशी? वो अली, उसने अभी ना ग्रेजुएशन किया है, ना उसके पास कोई जॉब है और मुझे पूरा यकीन है कि वो कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान मुस्तकिल मूव हो जाएगा और हमारी इकलौती बेटी वो हमसे दूर हो जाएगी। हम उसकी एक झलक देखने के लिए तरस जाएंगे शाहनवाज। लेकिन सुरैया, बात यह है कि इस मुल्क में हम अपनी बेटी को फोर्स भी नहीं कर सकते। यही तो दुख है शाहनवाज। मैं अपनी बेटी की बेहतरी चाहती हूँ, उसे जितना भी समझाने की कोशिश करती हूँ, वो मुझसे दूर होती जा रही है। नहीं, प्लीज सुरैया, प्लीज डोंट यू वरी, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? मैंने हर तरीके से उसे समझाया है। प्लीज शाहनवाज, तुम बात करो ना उससे, तुम्हारी बात तो वो मान लेती है। तुम फिक्र मत करो, परेशान ना हो, ओके? मैं अफशां से बात करूंगा। से मिलने गए थे? हाँ, बहुत परेशान है यार। वो कह रहा था कि उसने अली को नहीं मारा, बल्कि अली ने उसको मारा था। वो तो सिर्फ अपने बचाव के लिए उसने हल्का सा झगड़ा किया था। वैसे झगड़ा के साथ हुआ था? ये तो समझ के साथ नहीं आ रहा है कि झगड़ा हुआ किस बात पे। इतनी छोटी सी बात ही पता नहीं इतनी बड़ी बात कैसे बन गई है। तुम लॉयर से मिलने गए थे, लॉयर ने क्या कहा? वो कह रहा था कि ऐसे मसलों में रिहा होना बहुत मुश्किल है और टाइम भी काफी लगता है। मसले का सिर्फ एक ही हल है, वो ये कि बीवी को चार्जेस ड्रॉप कर दे तो पुलिस पे बगैर बॉन्ड के भी छोड़ देगी उसको। हाँ, यहाँ से मतलब हमें अली से बात करनी चाहिए और उसे कन्विंस करना चाहिए कि वो चार्जेस ड्रॉप कर दे। यही है बस। I'll talk to her. Let's go. ठीक है। पहला प्यार है। Yeah, hi Ali. This is Ali.
Listen, I don't know what happened between you two, but Suhail's sitting in jail. Why in the world did you send him there? What did he do? हाँ, उन्हें मीटिंग रूम में भेज दो। अस्सलाम वालेकुम सर। आइए आइए अली। सर, आपने मुझे बुलवाया था, खैरियत? हाँ, आप आए, बैठे ना। मुझे आपको कुछ समझाना था, प्लीज। थैंक यू सर। जी सर, फरमाइए। देखो अली, हमें चाहिए कि इस मुल्क में रहते हुए भी हम अपने तौर तरीके और अपनी तहजीब को ना भूलें। सर, मैं आपसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। गुड, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। सर, मैं कुछ समझा नहीं। अली, जिस तरह से तुम अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हो, उसी तरह से अफशां हमारी इकलौती बेटी, इकलौती औलाद है। क्या तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे बगैर खुश रह सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं सर। तो फिर हम किस तरह से अपनी बेटी से दूर रहकर खुश रह सकते हैं? तुम समझ रहे हो ना मेरा मतलब? सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आजकल के जदीद दौर में फासले सिमट चुके हैं। हम जब चाहें अपने किसी भी रिश्तेदार से, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों न रहता हो, राता रख सकते हैं, मिल सकते हैं। ये बातें पुराने वक्तों की तरह मुश्किल नहीं है सर। बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली के लिए ये बात सूटेबल नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में जब भी कोई फैसला किया है तो हमेशा मुस्तकबिल को मद्देनजर रख के किया है, चाहे वो फैसला मेरे लिए कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। और इस दफा मेरा फैसला यह है कि तुम अफशां को भूल जाओ।
बेटा मैं जानता हूं कि तुम इंतहाई शरीफ और खुददार हो। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना कि जिससे हम सबको कोई तकलीफ या शर्मिंदगी हो। I hope you understand. Please.